Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Debashri here. I'm working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code that is DEBA1. So what are the benefits of joining Unacademy Plus? Our daily life classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live test and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code that is DEBA1 to get the maximum benefit at the minimum price. So coming to the price list, if you join for 1 month, the price will be 1890. For 3 months, it is 4725. For 6 months, it is 8505. For 12 months, it is 10395. And for 24 months, it is 15120. If you use my referral code DEBA1, you will be getting a 10% off on all this. Okay. So today's topic is spectroscopic techniques. Already we have discussed about the classes which we have done or which we have seen in YouTube is about electromagnetic spectrum. We have seen, right? We have discussed electromagnetic spectrum. We have discussed UV visible spectroscopy, right? UV visible spectroscopy we have discussed, and in this class we'll be discussing infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy, we'll be discussing that. So what is infrared? If we talk about infrared spectroscopy, already I told you about, sorry, already I fine. Infrared spectroscopy. So what is infrared spectroscopy? Already I told you the different ranges of wavelength. We have seen there are cosmic rays. We have seen there is a gamma rays, right? Gamma rays. Then we have seen X-rays, UV, visible, infrared, microwave, and radio wave, right? So here we'll be discussing about your what? Infrared spectroscopy. So what is infrared spectroscopy? Infrared spectroscopy is basically the spectroscopy which uses or which deals with the infrared radiations. I told you what is spectroscopy. Whenever light interacts with a sample, say this is a sample, it is protein present here. Oh, so whenever light interact with a sample, that interaction basically we studied and it is known as spectroscopy. That interaction basically known as spectroscopy. But here what is the difference is that according to the wavelength of light we name the spectroscopy differently. If we use UV wavelength, we call it UV spectroscopy, right? If we use infrared wavelength, then we call it infrared spectroscopy, right? And if we use X-rays, then we call it X-ray crystallography, right? So this way, and if we use, you can say radio waves, we call it NMR, nuclear magnetic resonance, right? So according to the different wavelength, we have named the spectroscopy in a different form. So it depends on the wavelength. If the wavelength is X-rays wavelength, then we call it X-ray crystallography, right? So different types of spectroscopy is basically dependent on the wavelength of the electromagnetic spectrum, right? So this is what is the difference. Now whenever I told you right, this arrangement is basically in the high energy, low lambda, and this is at last you can say low energy and high lambda, this arrangement, right? So what is infrared? It is coming in between. The energy of infrared is less than UV visible, right? Or we can say the energy of UV visible is more compared to the infrared radiation, right? So now we will be studying your infrared spectrophotometry. Infrared spectrophotometry is used to determine the structure of a compound by studying interaction between matter and electromagnetic radiation. Obviously, whenever we are dealing with a spectroscopy, that is interaction of light with a sample,
राइट। जब भी किसी लाइट का सैंपल के साथ इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इंफ्रारेड का क्या होता है, एनर्जी थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू यूवी विजिबल से। अब जब उसका एनर्जी कम होता है तो वो क्या करते हैं, वो जैसे हम लोगों ने देखा था यूवी विजिबल में क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर। यूवी विजिबल में क्या होता था, मान लो ये शेल्स था, राइट। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन्स का कलर दूसरा ले लेती हूँ। मान लो यहाँ पे कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब जैसे ही क्या होता था, रेडिएशन आता था, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना जगह छोड़ के ऊपर आ जाते थे, राइट। ऊपर आने के बाद, ऊपर वाले शेल में आने के बाद थोड़ी देर तक वो इधर रहते थे। फिर जैसे ही वो थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता था तो अपनी स्टेबिलिटी को रिगेन करने के लिए वो फिर अपने शेल में मूव करते हैं। और जब ये अपने शेल में मूव करते हैं तो उस टाइम में वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जो कि आपके ये कौन देखता है, ये देखता है आपका डिटेक्टर, राइट। तो ये था हम लोग का क्या, यूवी विजिबल। लेकिन इंफ्रारेड का अब हमें पता है, हमें क्या पता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस का एनर्जी थोड़ा सा लेस होते हैं, राइट। एस इंफ्रारेड का एनर्जी थोड़ा सा लेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये एटम को, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसको एब्जॉर्व करते हैं, मान लो ये हो गया हम लोग का शेल। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी, लेट मी चेंज द कलर फॉर इलेक्ट्रॉन। अब मान लो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इंफ्रारेड रेडिएशन जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को, थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्व करेंगे, लेकिन इंफ्रारेड का एनर्जी कम है, इसीलिए क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इंफ्रारेड को एब्जॉर्व करेंगे वो ऊपर शेल में जंप नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे आपका, ये थोड़ा सा वाइब्रेशन शो करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्व करते ही वाइब्रेट करने लगेंगे, लेकिन ये ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। और इसीलिए ट्रांजिशन शो करता है यूवी विजिबल में, क्योंकि उनका एनर्जी ज्यादा होता है कंपेयर टू योर इंफ्रारेड रेडिएशंस, राइट। राइट, so we can say infrared spectroscopy or vibrational spectroscopy is an analytical technique that takes advantage of the vibration transition of a molecule। तो यहाँ पे बेसिकली वाइब्रेशंस होते हैं, राइट। क्योंकि क्यों होते हैं वाइब्रेशंस, क्योंकि जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, इनका एनर्जी लेस होते हैं। इंफ्रारेड का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, लेस होते हैं देन, लेस देन यूवी रेज। सो ये यूवी रेज क्या करते थे, यूवी रेज जैसे ही आपका सैंपल में पड़ते थे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते थे, फिर इलेक्ट्रॉन्स जंप करते थे अपने अपने शेल से हायर शेल में, राइट। और फिर जैसे वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने शेल में वापस आते हैं तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं जो कि डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं। लेकिन आपका यहाँ क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसका एनर्जी कम होता है कंपेयर टू योर यूवी रेडिएशंस। सो इसीलिए ये आपका क्या करते हैं, ये आपके वाइब्रेशंस को शो नहीं कर, ये आपके ट्रांजिशन को शो नहीं करते हैं, ये शो करते हैं आपके वाइब्रेशंस को। क्लियर, इसीलिए ये क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को शो करते हैं। क्लियर हुआ, यस। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशंस। देखो कैसे ये प्रोसेस होता है, सॉरी। When EMR is applied, it causes the vibration between the atoms of the molecule. Various chemical groups have specific vibrations and rotation frequency and thus absorb infrared light of specific wavelength and hence give a characteristic peak value, right? Next, अगर हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, यह है आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। ये दो तरह के होते हैं, एक हो गया आपका फंडामेंटल, दूसरा हो गया आपका नॉन फंडामेंटल, राइट। जो आपके फंडामेंटल होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस। जो आपके स्ट्रेचिंग होते हैं ये फिर से दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। और जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो है आपका इन प्लेन, आउट प्लेन बेंडिंग, राइट। इन प्लेन बेंडिंग मतलब जो सेम प्लेन में होता है, आउट प्लेन दो अलग अलग प्लेन में। इन प्लेन का दो पार्ट होता है, रॉकिंग, सीजरिंग। और जो आउट प्लेन होता है इसका भी दो पार्ट होते हैं, वेगिंग, ट्विस्टिंग, जो हम देखेंगे कैसा है, राइट। नॉन फंडामेंटल का जो होता है वो है ओवरटोन एंड फर्मी रेजोनेंस। हम अब देखेंगे क्या क्या होता है, राइट। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग में क्या होता है, ये देखो ये हो गया सेंटर एटम और यहाँ पे दो एटम जुड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे हम स्ट्रेचिंग में, क्या करेंगे, इन दोनों एटम्स का इसके साथ कैसे
रिलेशन हो रहा है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज बेसिकली द चेंज इन लेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक बोन। कोई भी बोन है, मान लो यहाँ ये बोन, इस बोन के जो आपका लेंथ है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में। चेंज इन बोन लेंथ occurs at high frequency। ये होता कब है नेचुरली, ये जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तभी, ये हाई फ्रीक्वेंसी रहने से ही ये संभव है, राइट। तो दो तरह के होते हैं बेसिकली स्ट्रेचिंग। कौन कौन सा स्ट्रेचिंग होता है आपका? सिमेट्रिकल, और दूसरा क्या होता है आपका? एसिमेट्रिकल। जो आपका सिमेट्रिकल होता है, आप देखो सिमेट्रिकल मतलब दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन। सिमेट्रिकल में क्या होगा? सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इस वाले पोर्शन पे ध्यान दो, ये है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है? एक इस तरफ जा रहे हैं तो दूसरा ऑपोजिट, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन, एसिमेट्रिकल। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये सिमेट्रिकल नहीं है, अलग अलग है दोनों, राइट। क्लियर एवरीवन? अब हम बात करते हैं आपके बेंडिंग का। बेंडिंग बेसिकली क्या होता है? बेंडिंग होता है आपका चेंज इन बोन एंगल, राइट। बेंडिंग क्या करते हैं? चेंज करते हैं किसमें? चेंज इन बोन एंगल को ये चेंज करवाता है। चेंज इन एंगल बिटवीन द टू बोन्स। ये दो तरह के होते हैं, या तो इन प्लेन या तो आउट प्लेन। जो इन प्लेन होते हैं इसको हम बोलते हैं सिजरिंग और रॉकिंग, और जो आउट प्लेन होते हैं इसको हम बोलते हैं वेगिंग, ट्विस्टिंग। अब सिजरिंग क्या है? व्हेन बोथ द एटम अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर एंड द बोन एंगल डिक्रीजेस। मान लो ये दो एटम है, राइट। अब ये दोनों एटम क्या करेंगे? अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये अपने आप दोनों के पास, अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। एक राइट आ रहा है तो दूसरा लेफ्ट आ रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा? जो बोन एंगल होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। अब देखो, अब इतना है, राइट। तो जैसे ही ये पास आएंगे, अगर मैं दिखाऊं आपको कलर चेंज करके, जैसे ही ये दोनों पास आएंगे तो बोन एंगल यहाँ हो जाएगा। तो देखो बोन एंगल कितना डिक्रीज हुआ, राइट। तो ये हो गया, बोन एंगल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, राइट। रॉकिंग की अगर हम बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। रॉकिंग के केस में क्या होगा? जो मूवमेंट ऑफ एटम है वो सेम डायरेक्शन में, अगर ये इस तरफ है ये भी इस तरफ जाएगा, राइट। और अगर ये इस तरफ जाएगा, अगर ये आपका इस तरफ जाएंगे तो ये भी आपका इस तरफ जाएंगे, राइट, सेम डायरेक्शन। अगर हम वेगिंग की बात करते हैं, टू एटम्स मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन, दे मूव अप एंड डाउन द प्लेन। तो दोनों एकदम वेगिंग में क्या होता है? एक ही प्लेन में एक साइड में मूव करते हैं। मान लो ये है तो ये एक ही साइड में मूव करेंगे, हम देखेंगे डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में। ट्विस्टिंग में क्या होता है? एक अबव द प्लेन होता है, दूसरा बिलो द प्लेन होता है। अब ये देखो सिजरिंग, दोनों अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। रॉकिंग, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अबव द प्लेन मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, अबव द प्लेन। वेगिंग में दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, सेम डायरेक्शन होगा। लेकिन ट्विस्टिंग में क्या होगा? ऑपोजिट होगा, राइट। ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस। अभी हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आपके यूज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंटामिनेंट्स इन इंडस्ट्री, हम किसी भी अननोन कंटामिनेंट्स को भी इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और हम ऑर्डर एंड टेस्ट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। कमिंग टू क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे अननोन कंपाउंड का? मान लो अननोन कंपाउंड में इसके बेसिकली 3 पिक्स मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक, राइट। अभी मान लो अननोन कंपाउंड में आपका हाइड्रोक्साइड है। अगर हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा तो ये बिल्कुल ऐसा वाला पिक दिखाएगा, राउंडेड। इसको हम क्या बोलते हैं? राउंडेड टिप। फॉर किसके लिए दिखाएगा ये? फॉर हाइड्रोक्साइड। अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो इसमें 2 शार्प पिक्स होंगे, ये देखो, ये हो गया आपका किसके लिए? प्राइमरी
अमाइंस के लिए, राइट। सेकेंडरी अमाइन के लिए क्या होगा, 1 शार्प स्पाइक, ये हो गया आपका क्या, सेकेंडरी अमाइन, राइट। और टर्शियरी अमाइन के लिए नो सिग्नल, अगर टर्शियरी अमाइन प्रेजेंट होगा तो ये सिग्नल देगा ही नहीं, ठीक है। Okay, so I am finished ending up the class here. Next class we'll be dealing with X-ray crystallography. Next class we'll be dealing with the X-ray crystallography or some other part of spectroscopy part only we will be dealing with. So if you have any queries, students, you can message me. You can message me on the Unacademy platform. You can also comment here. I keep on checking, so you can drop the comment, and that's all. So if you are preparing for CSI and that, you can subscribe to our channel. You can use Unacademy Plus with the help of my referral code, that is DEBA1. With the help of my referral code, that is your DEBA1, right? Thank you so much, students. See you. Bye bye. Take care, everyone.